السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، وہ ایک یتیم نوجوان تھا جس کے پاس نام کے سوا کچھ نہ تھا، مگر دل میں وفاداری کا وہ جذبہ تھا جو بڑے بڑے دعووں سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ دنیا نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے اصولوں کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ایک ایسے امتحان کی ہے جہاں وفاداری کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وزیر آباد ایک چھوٹا سا اور خوبصورت گاؤں تھا۔ سعید اس گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ 17 سال کا ایک صحت مند اور خوبصورت لڑکا تھا۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کی ماں گردن توڑ بخار میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی، اور اس واقعے کے ٹھیک 1.5 سال کے بعد اس کا باپ بھی ایک کنویں میں گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور اب سعید اتنی بڑی دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ وزیر آباد سے 28 میل دور شہزاد نگر نامی ایک شہر تھا جس میں سعید کے رشتے کی ایک چچی رہتی تھی۔ اگر سعید چاہتا تو وہ اپنی چچی کے پاس بھی جا کر رہ سکتا تھا، مگر وہ ایک خوددار لڑکا تھا۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ کسی پر بوجھ بنے، اس لیے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اس نے گزر اوقات کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ وہ گاؤں میں ایک شخص کے پاس ملازم ہو گیا۔ اس شخص نے سینکڑوں کی تعداد میں مرغیاں پال رکھی تھیں۔ اس کا نام رحیم تھا۔ رحیم مرغیوں کے انڈوں کا بیپاری تھا اور گاؤں والوں کے ہاتھوں مرغیوں کے انڈے فروخت کرتا تھا۔ اس نے گنوں کے کھیت کی دوسری طرف ایک بڑے سے میدان میں کافی ساری جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا، جہاں پر جالی دار ڈربوں میں مرغیاں بند ہوتی تھیں۔ ان ڈربوں کے اطراف میں گھاس پھوس اور بانسوں کی مدد سے ایک 4 دیواری قائم کر دی گئی تھی۔ رحیم دن بھر اپنا ڈیرا وہیں جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے حقہ گڑگڑاتا رہتا، اور جب چلم میں آگ سرد ہو جاتی تو وہ بڑی کاہلی سے اٹھ کر مرغیوں کے ڈربوں کا جائزہ لیتا اور وہاں سے انڈے اٹھا اٹھا کر ایک ٹوکری میں جمع کر لیتا۔ شام ہوتے ہی وہ انڈوں کی ٹوکری اٹھاتا۔ گھاس پھوس کی بنائی ہوئی 4 دیواری میں کوئی باقاعدہ دروازہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اس میں چارپائی کھڑی کر کے لگا دیتا تھا اور گاؤں پہنچ کر وہاں کی گلیوں میں بلند آواز سے انڈے بیچتا پھرتا۔ اس کاروبار میں اسے کافی فائدہ ہوا تھا۔ جب اس کے پاس 4 پیسے جمع ہو گئے تو اس نے مرغیوں کو دانہ پانی دینا، ان کے انڈے جمع کرنا اور ان انڈوں کو گلیاں گلیاں بیچنا برا سا لگنے لگا، اور وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے اسے کوئی ملازم رکھ لینا چاہیے۔ انہی دنوں سعید کے باپ کی وفات بھی واقع ہو گئی تھی، تو رحیم نے سعید سے اس بارے میں بات کی۔ اس نے سعید سے کہا، دیکھو سعید، تمہارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب تمہیں خود ہی یہ زندگی گزارنا ہے، اس لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ اس محنت کا مواوضہ حاصل کر کے ہی تم اپنا پیٹ پال سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی مرغی خانے میں نوکری دے سکتا ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ سعید نے فوراً حامی بھر لی، اور یوں وہ رحیم کے مرغی خانے میں ملازم ہو گیا اور وہاں بڑی محنت سے کام کرنے لگا۔ رحیم نے مرغی خانے میں ایک سائبان بھی بنوا لیا تھا، اور وہ سارا دن چارپائی پر لیٹا حقے کی کہہ منہ میں دبائے سعید کو مرغی خانے میں کام کرتے دیکھتا رہتا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ سعید اس نئی مصروفیت سے بے حد خوش تھا۔ جب شام کو وہ انڈوں کی ٹوکری اٹھائے گاؤں کی گلیوں میں انڈے فروخت کرنے کے لیے صدائیں لگاتا تو گاؤں والے اس کی بے حد تعریف کرتے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ رحیم اپنی جگہ خوش تھا کہ سعید نے آ کر اس کے کاروبار کو مزید چمکا دیا ہے۔ اس کی بہتر دیکھ بھال نے مرغیوں کو بھی خوش کر دیا تھا۔ وقت پر دانہ پانی ملنے کی وجہ سے زور سے ککڑوں کڑوں کر کے اپنے پر پڑ پڑاتی تھیں، اور اب ان کے انڈے بھی زیادہ بڑے اور خوبصورت ہونے لگے تھے، جنہیں گاؤں کے لوگ بڑی خوشی سے خریدتے۔ مگر نہ جانے کس کی بدقسمتی تھی کہ گاؤں میں ایک رات بڑے زور کی بارش ہوئی۔ کسان تو بہت خوش تھے کہ بارش ان کی فصلوں کے لیے مفید ہوتی ہے، مگر رحیم اس بارش سے خوفزدہ اور فکر مند ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر بارشوں کے بعد مرغیوں میں ایک وبائی بیماری پھوٹ پڑتی ہے، جس کی لپیٹ میں آ کر مرغیاں چوں بھی نہیں کر پاتی اور پٹ سے مر جاتی ہیں۔ بوندا باندی شام سے ہی شروع ہوئی تھی۔ رحیم نے جھٹ اپنا ایک پرانا سا سیاہ رنگ کا صندوق نکالا اور اس میں سے ایک بوسیدہ سی کتاب نکال کر جلدی جلدی اس کے ورق الٹ کر ایک جگہ رک گیا۔ پھر اس نے اپنے کان میں اٹکی ہوئی پینسل، جس سے وہ انڈوں کا حساب کتاب کرتا تھا، نکال کر ایک کاغذ کے پرزے پر اس کتاب سے کچھ دوائیوں کے نام لکھ کر سعید کو پنساری کی دکان کی طرف دوڑا دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ رات بھر ان دوائیوں کو بنائے گا اور صبح ہوتے ہی مرغیوں کو ایک ایک خوراک کھلا دے گا،
ताकि ये अंदेशा ही ख़त्म हो जाए कि वबाई बीमारी फूट पड़ने की वजह से मुर्गियों का खात्मा हो जाएगा। वो तमाम रात मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की छान पटक करता रहा। सईद अपने घर भी ना जा सका। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। रात के पिछले पहर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी भी तो तूफान शुरू हो गया। बाहर से अजीब तरह का शोर बुलंद होता रहा। रहीम का मकान था तो पक्की ईंटों का, मगर बावर्ची खाने की दीवार चिकनी मिट्टी की बनाई गई थी, जो बारिश की वजह से रात को ही गिर गई थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई। रहीम ने स्याह रंग की गोल मिर्चों के बराबर गोलियों के बर्तन को अपने हाथ में पकड़ा और सईद को साथ लेकर अपनी मुर्गी खाने की तरफ चल दिया। बारिश थम चुकी थी, मगर बाहर जगह जगह पानी के तालाब बने हुए थे। उन्हें कई टूटे हुए मकानात की दीवारें भी नजर आईं। वो कीचड़ से बचते बचाते तेज तेज कदमों से मुर्गी खाने की तरफ जा रहे थे। गन्ने का खेत पार करके जब वो मुर्गी खाने के करीब पहुंचे तो मुर्गी खाने में मुकम्मल खामोशी थी। रहीम का दिल धक से रह गया। वो झपट कर अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए कि तमाम मुर्गियां अपने अपने डरबों में मुर्दा पड़ी थीं। बारिश का पानी डरबों में दाखिल हो गया था और मुर्गियां अकड़ कर मर गई थीं। रहीम सर पकड़कर बैठ गया। इस वाक़े के बाद जाहिर है सईद को भी इस मुलाजमत से हाथ धोना पड़ गए, इसलिए वो कोई दूसरा काम ढूंढने में मसरूफ हो गया, मगर उसे कोई कामयाबी ना हुई। आखिर बहुत सोच विचार के बाद इसने एक फैसला कर लिया। वो गांव के उन लोगों से मिला जिनके पास भेड़ बकरियां और दूसरे जानवर थे। इसने उनसे कहा कि वो इन भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करेगा। गांव वाले उसकी बात बड़ी खुशी से मान गए। उन्होंने पहले इस काम के लिए एक चरवाहा रखा हुआ था, मगर वो चरवाहा बेईमान साबित हुआ। वो भेड़ बकरियों का दूध निकालकर दूसरे गांव में फरोख्त करने लगा था। गांव वालों को उसकी इस हरकत का पता चल गया। उन्होंने इस चरवाहे को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर पहले तो उसकी खासी मरम्मत की और उसके बाद गांव के हजाम को बुलाकर उसको गंजा करवा दिया। फिर उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर उसे गांव से रुखसत कर दिया। वो लोग इस बात पर बहुत खुश थे कि उन्होंने उसकी बेईमानी पर उसे बहुत अच्छी सजा दी। मगर जब शाम हुई तो उस कुम्हार को, जिसका वो गधा था और जिस पर बेईमान चरवाहे को सवार करा के गांव से निकाला गया था, ख्याल आया कि वो चरवाहा तो उसका गधा भी ले गया। तो वो रोता पीटता गांव के नंबरदार के पास पहुंचा। कुम्हार की दास्तान सुनकर नंबरदार गांव वालों की सादगी पर बहुत हंसा और फिर इसने अपने पास से इस कुम्हार को गधे की कीमत अदा कर दी। बहरहाल उसके बाद गांव वालों ने कोई दूसरा चरवाहा नहीं रखा, मगर जब उन्होंने ये देखा कि सईद इस काम के लिए आमादा है तो वो झट राजी हो गए, क्योंकि उन्हें सईद की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। सईद बहुत मेहनती लड़का था। वो सुबह सवेरे उठकर नमाज से फारिग होकर अपने खाने पीने के लिए कुछ पकाता, फिर सूरज के निकलते ही वो तमाम घरों से जानवरों को इकट्ठा करता और उन्हें एक लंबी सी छड़ी से हाँकता हुआ जंगल की सिमत रवाना हो जाता। वो फी जानवर हर घर से 2 रुपया माहाना वसूल करता था। उसका इरादा था कि जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो वो भी गांव में कुछ जमीन खरीदकर सब्जियों की काश्त शुरू कर देगा। तमाम भेड़ बकरियां घास से भरे हुए मैदान में बैठी आंखें बंद किए जुगाली में मसरूफ थीं। उनसे जरा फासले पर एक बड़े से पत्थर पर सईद बैठा हुआ इन बकरियों की तरफ देख रहा था। अचानक उनमें से 2 बकरे किसी बात पर नाराज होकर उछलकर खड़े हो गए और एक दूसरे को टक्करें मारने लगे। सईद ने उन्हें जाकर एक दूसरे से अलग किया। एक बकरा कुछ शरीफ सा दिखाई देता था। वो सईद की मुदाखलत पर चुपचाप एक तरफ को जाकर बैठ गया, मगर दूसरे बकरे ने जरा पीछे हटकर एक भरपूर टक्कर सईद को दे मारी। सईद पीछे की जानिब गिरते गिरते बचा। उसे बड़े जोर का गुस्सा आ गया। उसने बकरे के कान पकड़कर उसके मुंह पर 1-2 थप्पड़ लगाया। बकरा मैं करने लगा। सईद ने उसका कान छोड़ दिया और उसे खूनख्वार नजरों से घूरने लगा। अचानक वो चौंक पड़ा। उसके कानों में एक हल्के से धमाके की आवाज आई और फिर किसी जानवर के जोर जोर से चीखने की आवाज भी आने लगी। सईद ये आवाजें सुनकर हैरत ज़दा हो गया। उसकी नजर जंगल की सिमत लगी हुई थी जो उससे थोड़े ही फासले पर था। इसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर वो जंगल की तरफ भागने लगा, क्योंकि चीखने और चिल्लाने की आवाजें जंगल में से ही आ रही थीं। जंगल में दाखिल होते ही उसके हरकत करते हुए कदम एकदम रुक गए। वो हैरत और खौफ भरी नजरों से उस बिन मानस को देख रहा था जो एक जमीन से उखड़े हुए दरख्त के नीचे दबकर दर्द के मारे चिल्ला रहा था। दरख्त का तना उसके सीने पर था। उसके दोनों हाथ भी दब गए थे।
जब वह बिन मानस चिल्लाता था तो उसके लंबे सफेद दांत चमकने लगते थे। सईद उसके कुछ और करीब हो गया। अचानक ही बिन मानस की नजर सईद पर पड़ गई। इसने चीखना बंद कर दिया और सईद की तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देखने लगा। उसके मुंह से कराहें बदस्तूर जारी थी। सईद को बिन मानस पर बहुत तरस आ रहा था। अगर बिन मानस के दोनों हाथ आजाद होते तो वो दरख्त को बड़ी आसानी से एक तरफ हटा देता, क्योंकि वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। लेकिन हाथ आजाद ना होने की वजह से वो बेबस हो गया था। सईद ने सोचा अगर वो कोशिश करे तो इस दरख्त को बिन मानस के ऊपर से धकेल कर दूसरी तरफ गिरा सकता है, मगर इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि आजाद होकर बिन मानस उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो शशोपंज में मुब्तला हो गया। वो इस बात से बेखबर था कि वही बकरा जिसके कान पकड़कर इसने इसको थप्पड़ मारा था, सर झुकाए दौड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा था। सईद अभी ये सोच ही रहा था कि बिन मानस की मदद करे या ना करे कि बकरे की ताकतवर टक्कर उसकी कमर पर लगी। सईद के पांव जमीन से उखड़ गए। वो हल्की फुल्की गेंद की तरह उछलकर सीधा बिन मानस के ऊपर जा गिरा। उसका मुंह बिन मानस के बालों भरे सीने में धंस गया और उल्टे हाथ की कोनी बिन मानस के खुले हुए मुंह में घुस गई। बकरे ने फखरिया अंदाज में गर्दन अकड़ाई, 2-4 दफा जमीन पर अगले पांव मारे, फिर एक उल्टी कलाबाजी खाकर अपने रेवड़ की तरफ भाग गया। सईद के पूरे जिस्म में खौफ और दहशत की एक लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से बिन मानस के मुंह से अपनी कोहनी निकाली और जमीन पर दूसरे हाथ की हथेली टिकाकर दूसरी तरफ लुढ़क गया और जमीन पर बैठकर बिन मानस की तरफ देखने लगा। सईद ने सोचा कि अगर बिन मानस उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसकी कोहनी उस वक्त अपने तेज दांतों से चबा डालता, जब वो बकरे की जबरदस्त टक्कर की वजह से उसके ऊपर गिरा था। ये सोचकर इसने फैसला कर लिया कि वो बिन मानस की जरूर मदद करेगा। बिन मानस उसकी तरफ रहम तलब नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने फिर तकलीफ से चीखना शुरू कर दिया। सईद अपनी जगह से उठा। इसने दरख्त की तरफ देखा। वो एक घना दरख्त था। बारिश और तूफान की वजह से उसकी जड़ के करीब से मिट्टी हट गई थी, जिसकी बिना पर वो जड़ से उखड़कर बिन मानस पर गिर पड़ा था। सईद ने दरख्त की जड़ के नीचे अपने दोनों हाथ फंसाए और सांस रोककर उसे उठाने के लिए जोर लगाने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद इसने दरख्त को थोड़ा सा बुलंद करके बिन मानस के सर पर से गुजार कर उसे दूसरी तरफ जमीन पर गिरा दिया। दरख्त के हटते ही बिन मानस ने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर वो थोड़ा सा ही उठा था कि फिर झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। शायद उसके सीने में चोट लग गई थी। सईद का डर अब दूर हो गया था। वो बिन मानस के करीब बैठ गया और धीरे धीरे उसके सीने को सहलाने लगा। बिन मानस के जिस्म पर बड़े बड़े खुरदरे बाल थे और उसके जिस्म से अजीब सी बू आ रही थी। थोड़ी देर बाद बिन मानस की हालत कुछ बेहतर हो गई और वो उठकर बैठ गया और तशक्कर आमेज नजरों से सईद को देखने लगा। फिर इसने अपना हाथ सईद के शाने पर रख दिया, जैसे वो सईद की उस आमद और मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। सईद ने होले से उसका हाथ थपथपाया और बोला, अच्छा मेरे दोस्त, अब मुझे इजाजत दो। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और वापस चल दिया। बिन मानस की नजरें उसका ताक़ुब कर रही थीं। शाम होने वाली थी और सईद इस फिक्र में था कि सूरज डूबने से पहले तमाम जानवरों को लेकर गांव पहुंच जाए। भेड़ बकरियों के करीब पहुंचकर इसने एक जगह खड़े होकर हवा में अपनी छड़ी घुमाकर मुंह में एक हाथ की उंगली डालकर जोर से सीटी बजाई। वो जानवर जो इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, सीटी की आवाज सुनते ही अपने दूसरे साथियों से आकर मिल गए और फिर सईद उन्हें लेकर गांव की तरफ चल दिया। दूसरे दिन जब वो उन जानवरों को दोबारा लेकर उस मैदान में आया तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वही कल वाला बिन मानस एक पत्थर पर बैठा हुआ था। सईद अपनी जगह रुक गया। अब उसे बिन मानस से खौफ महसूस होने लगा था। वो बिन मानस उस पत्थर पर बैठा हुआ किसी देव के मानिंद नजर आ रहा था। सईद ने सोचा कि ये जानवर कितना खौफनाक है, न जाने ये यहाँ क्यों बैठा है। सईद को रुकता देखकर वो बिन मानस आहिस्तगी से अपनी जगह से उठा और अपने दोनों लंबे लंबे बाजू बड़े खौफनाक अंदाज में फैलाते हुए सईद की तरफ बढ़ा। सईद को मारे खौफ के पसीना आ गया। उसने सोचा कि वो वहां से भाग जाए, मगर बावजूद कोशिश के वो अपने कदमों को हरकत ना दे सका और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव मन मन के हो गए हों। कल जब वो बिन मानस के ऊपर से दरख्त हटा रहा था तो न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने उसका खौफ दूर कर दिया था, मगर अब वो खौफजदा नजर आने लगा था। थोड़ी देर बाद बिन मानस उसके करीब पहुंच गया।
उसकी चमकदार आंखें सईद के चेहरे पर गड़ी हुई थीं और सफेद दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। तमाम भेड़ बकरियां इस देव को देखकर इधर उधर भाग गईं। बिन मानस सईद के पास आकर रुक गया। फिर इसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उस पर एक सुर्ख और सफेद सेब रखा हुआ था। सईद ने अपना लरसता हुआ हाथ बढ़ाकर वो सेब उठा लिया। बिन मानस खुश होकर दांत निकालने लगा। अब उनमें दोस्ती हो गई थी। फिर बिन मानस हर रोज सईद से उसी जगह मिलने लगा। भेड़ बकरियां घास चरती फिरती थीं और सईद बिन मानस के साथ जंगल में घूमता फिरता। अब उसे बिन मानस से जरा भर भी खौफ महसूस नहीं होता था। एक रोज का जिक्र है, सईद तमाम भेड़ बकरियों को घर घर छोड़कर जब नंबरदार की बकरियों को छोड़ने उसके घर पहुंचा तो उसने देखा नंबरदार की बीवी एक कोने में बैठी सुबक सुबक कर रो रही है। सईद ने बकरियों को उनकी जगह पर बांधा और नंबरदार के एक मुलाजिम से पूछा, क्यों भाई खैरू, ये नंबरदारनी को क्या हो गया है? क्या नंबरदार से झगड़ा हो गया है? खैरू कहने लगा, नहीं सईद भैया, झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ। बात ये हुई है कि नंबरदार साहब आज शहर गए थे। वहां से उन्होंने पूरे 7,000 के जेवरात अपनी नंबरदारनी के लिए खरीदे थे। जब वो वापस आ रहे थे तो दोपहर का खाना खाने के लिए जंगल में एक जगह बैठ गए। सोने के जेवरात एक रेशमी पोटली में बंधे हुए थे। वो पोटली उन्होंने दरख्त के नीचे दबाकर खाना निकाला। वहां पर दरख्तों पर बहुत सारे बंदर भी थे। नंबरदार साहब ने जैसे ही एक लुकमा लिया, एक बंदर ने एक शाख पर झूलकर उनके सर पर रखी हुई कामदार टोपी उचक ली और दूसरे दरख्त पर कूद गया। नंबरदार साहब ने पहले तो अपने करीब रखा हुआ जूता बंदर को खींच मारा, फिर टोपी हासिल करने के लिए उसके पीछे भागा, मगर बंदर दरख्त पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया था। वो बेबसी से हाथ मलते हुए दोबारा अपनी जगह पर आए तो यह देखकर उनके होश उड़ गए कि जेवरात की पोटली वहां से गायब थी। कोई बदमाश बंदर उस पोटली को ले उड़ा था। नंबरदार साहब ने आसपास के तमाम दरख्त छान मारे मगर पोटली नहीं मिली। थकार कर वो वापस आ गए। नंबरदारनी ने जब से ये वाकया सुना है उसके आंसू रुकते ही नहीं। हालांकि नंबरदार साहब ने उससे वादा भी कर लिया है कि वो शहर जाकर दूसरे जेवरात ले आएंगे, मगर ये बात नंबरदारनी की समझ में नहीं आती। हम भी क्या करें? सईद ने खैरों की बात सुनकर इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज वो अपने दोस्त बनमानस के साथ जंगल के बहुत अंदर तक गया था और पैदल चलते चलते उसकी टांगों में दर्द भी होने लगा था। अब वो काफी थकन महसूस कर रहा था। करीब एक चश्मे पर वो नहाने बैठ गया। नहाकर इसने नान बाई की दुकान पर जब जाकर खाना खाया और फिर वो जो बेसुध होकर बिस्तर पर गिरा और सो गया। हस्बे मामूल आज भी सुबह सवेरे वो भेड़ बकरियों को हाँकते हुए जंगल की तरफ चल दिया। जब वो इस बड़े से मैदान में पहुंचा जहां भेड़ बकरियां चरती थीं और जहां मैदान के खत्म होते ही जंगल शुरू हो जाता था, तो ये देखकर उसको थोड़ी सी हैरत हुई कि आज बिन मानस उस जगह मौजूद नहीं था जहां पर वो रोजाना उसका इंतजार करता था। सईद घास पर लेटकर जंगल की तरफ देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि बिन मानस जरूर आएगा, मगर सूरज सर पर आ गया। तब भी बिन मानस का दूर दूर तक पता न था। सईद अपने दोस्त बिन मानस से बेहद मोहब्बत करने लगा था। वो आज नहीं आया तो सईद का दिल बेचैन हो गया। वो अपने साथ जो खाना लाया था वो अभी तक जूं का तूं पड़ा था। उसका दिल ही नहीं चाह रहा था खाने को। वो तो ये सोचकर फिक्र में मुब्तला हुआ जा रहा था कि कहीं इसके प्यारे दोस्त को कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। फिर अचानक इसने सोचा कि चलकर देखा जाए कि मामला क्या है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, इसलिए भेड़ बकरियों की तरफ से सईद को यह फिक्र ना थी कि उन्हें कोई पकड़ कर ले जाएगा। वो उठकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। पहले तो उसने वो जगह देखी जहां पर बिन मानस उसे अपने साथ ले जाता था, मगर इन जगहों पर भी वो नहीं मिला। 1 घंटे की तलाश के बाद सईद एक जगह खड़े होकर सोचने लगा कि अब उसे कहाँ तलाश करे। अभी वो कोई भी फैसला नहीं कर पाया था कि उसके कानों में गोली की चलने की आवाज आई। जंगल के उस पार शहजाद नगर नामी शहर था और वहां से अक्सर लोग शिकार की खातिर जंगल में निकल आते थे। गोली की आवाज सुनकर वो ठटक कर रुक गया। अनजाने खदशों ने उसे परेशान कर दिया। वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी शिकारी पार्टी ने उसके बिन मानस दोस्त को घेर घार कर गोली का निशाना ना बना दिया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उस सिमत भागा जिधर से गोली की आवाज आई थी। फिर वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे जल्दी से एक दरख्त की आड़ में होना पड़ा। सामने ही दरख्तों के झुंड में एक शिकारी खड़ा था। उसकी पीठ सईद की जानिब थी और वो खाकी कोट पतलून में मलबूस था।
उसके एक हाथ में राइफल थी और दूसरे हाथ में एक रेशमी कपड़े की पोटली थी और इसके करीब ही जमीन पर एक बंदर ऊंधा पड़ा हुआ था। उसके साकत जिस्म और बालिश भर के सीने में एक रंगीन सुराख देखकर कोई भी बड़ी आसानी से ये समझ सकता था कि बेचारा बंदर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। सईद फौरन ही समझ गया कि ये वही बंदर था जो कल नंबरदार साहब की जेवरात की पोटली लेकर भाग गया था। इस शिकारी ने कुछ देर बाद अपनी राइफल एक दरख्त से टिकाकर खड़ी कर दी और पोटली खोलकर उसका जायजा लेने लगा। सईद दरख्त के पीछे से निकलकर इस शिकारी के करीब पहुंचा। अपने पीछे आहट महसूस करके शिकारी ने जल्दी से गर्दन घुमाई। सईद एक लम्हे को तो हैरान रह गया, फिर खुशी से चिल्लाकर बोला, अरे अरशद साहब आप। अरशद ने जल्दी से पोटली छुपाने की कोशिश करते हुए हैरत और नागवारी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा, ओए सईद, तू यहाँ क्या कर रहा है? सईद उससे ये तो नहीं कह सकता था कि वो अपने एक दोस्त बिन मानस को तलाश करते हुए यहाँ आया है, क्योंकि उसकी बात सुनकर अरशद को यकीन ही ना आता और वो उसका मजाक उड़ाने लगता। इसलिए वो बोला, जी बस मैं आपकी गोली की आवाज सुनकर यहाँ चला आया था। दरअसल मैं आजकल भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ आता हूँ। वैसे आपने इस बंदर को मारकर बहुत अच्छा किया। ये कल अपने नंबरदार के जेवरात की पोटली ले भागा था। वैसे अरशद साहब, आपको नंबरदार साहब बहुत याद करते हैं। गांव के चौपाल में जब भी बैठते हैं तो पहले तो शिकार का तज़किरा छिड़ता है, उसके बाद आपका जिक्र होने लगता है। अरशद नंबरदार का दोस्त था। वो दोनों ही गांव में एक साथ पले बड़े थे। फिर जवान होकर अरशद शहजाद नगर में जा बसा था, मगर वो कभी कभार गांव भी आ जाता था। वो शिकार का बहुत शौकीन था और वो जब भी गांव आता था उसका नंबरदार के साथ शिकार का प्रोग्राम जरूर बनता था। सईद की बात सुनकर अरशद ने जेवरात की पोटली को छुपाना बेसूद समझा। इसने वो थैली सईद को दिखाकर कहा, मैं तुम्हारे ही गांव आ रहा था। घोड़ा भूखा था, उसे घास चरने के लिए छोड़कर मैं इधर उधर देख रहा था कि मेरी नजर इस मोटे बंदर पर पड़ गई। ये पोटली इसने बगल में दबा रखी थी। मैंने सोचा जरूर इस पोटली में कोई कीमती चीज है, इसलिए मैंने इसे मार गिराया। नंबरदार साहब की बीवी को इन जेवरात के खो जाने का बहुत अफसोस है। आप फौरन गांव चले जाइए, जेवरात के मिल जाने पर वो बहुत खुश होंगी। अरशद लाख नंबरदार का दोस्त सही, मगर इतने कीमती जेवरात पाकर उसकी नीयत बदल गई। इसने बड़े नरमी से कहा, सईद, इस बात को अपने तक ही महदूद रखना कि मैंने बंदर को मारकर ये जेवरात हासिल कर लिए हैं। नंबरदार तो बहुत अमीर आदमी है, वो कुछ और रकम खर्च करके दूसरे जेवरात भी खरीद सकता है। अगर ये जेवरात मेरे कब्जे में रहें तो मैं इनको बेचकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा। सईद बिलक कर बोला, अरशद साहब, दोस्ती का ही कुछ लिहाज कीजिए। मैं तो आपको इतना बेईमान नहीं समझता था। अरशद के तेवर एकदम बदल गए और लहजा बदल कर बोला, अगर तू अपनी जबान बंद रखने का वादा करे तो मैं तुझे अभी इसी वक्त 50 रुपए दे सकता हूँ। याद रख, अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे जिंदा इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि तू ये सारी बातें नंबरदार से जाकर कह देगा। ये जेवरात मैंने हासिल किए हैं और इन पर मेरा ही हक बनता है। ये कहते हुए अरशद ने दरख्त से टिकी हुई अपनी राइफल की तरफ देखा और सईद को घूरने लगा। सईद जान चुका था कि अरशद की आंखों पर लालच ने पट्टी बांध दी है। वो ये भी समझ गया था कि अरशद उसके इनकार पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और सईद इसके लिए तैयार नहीं था कि महज 50 रुपए की खातिर वो भी एक जुर्म में शरीक हो जाए। इसने अपनी नाक सहलाकर 2-3 मरतबा पलकें झपकाई और फिर अचानक ही अरशद के हाथों से जेवरात की पोटली झपट कर एक तरफ को भाग निकला। अरशद को सईद से इस हरकत की बिल्कुल तवक्को न थी। एक लम्हे को तो वह हक्का बक्का रह गया। फिर इसने तेजी के साथ अपनी राइफल उठाई और भागते हुए सईद पर एक फायर दाग दिया। फायर जल्दी में किया गया था, इसलिए निशाना चूक गया। फिर अरशद को दूसरा फायर करने की मोहलत ही ना मिली, क्योंकि सईद दरख्तों के झुंड में घुसकर नजरों से गायब हो गया था। अरशद ने सोचा कि अगर सईद बचकर चला गया तो उसे जेवरात से भी हाथ धोना पड़ेंगे और वो नंबरदार के अलावा गांव के लोगों की नजरों से भी गिर जाएगा, क्योंकि सईद यकीनी तौर पर वहां उसकी बेईमानी का पोल खोल देगा। लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि सईद को हर कीमत पर मौत के घाट उतार कर रहेगा ताकि इसकी बनी हुई इज्जत महफूज रहे। ये सोचते ही वो भी उस तरफ दौड़ पड़ा जहां पर सईद रुपोश हो गया था। वो एक माहिर शिकारी था। वो तेजी से बगैर कोई आवाज पैदा किए दौड़ सकता था। उसको जल्द ही सईद नजर आ गया। वो जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बड़ी तेज रफ्तारी से भाग रहा था।
अरशद के लिए ये काफी मुश्किल बात थी कि सईद को अपनी गोली का निशाना बना सके, क्योंकि बड़े बड़े दरख्तों के तने सईद की ढाल बने हुए थे। सईद बार बार गर्दन मोड़कर पीछे की जानिब देख रहा था और वो भी इस बात से बेखबर हो गया था कि अरशद उसके ताक़ुब में है। इसलिए वो यही कोशिश कर रहा था कि दरख्तों की आड़ लेकर भागता रहे। अगर अरशद की तरफ से कोई फायर भी हो तो वो इन दरख्तों की वजह से महफूज रहे। अरशद ने सोच लिया था कि इस भाग दौड़ से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसने चालाकी से सईद को घेरने का मंसूबा बनाया। इसने खुद को झाड़ियों में गिरा दिया। जब सईद ने थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़कर देखा तो अरशद को गायब पाकर वो हैरान हुआ। एक मोटे से तने के दरख्त के पीछे छुपकर वो गर्दन निकालकर अरशद को तलाश करने की कोशिश करने लगा। अरशद का तो जी चाहता था कि यहीं से गोली चलाकर सईद की खोपड़ी उड़ा दे, मगर खारदार झाड़ियों की वजह से सही निशाना लेना मुमकिन न था। वो दांत पीसते हुए सईद को देखने लगा। सईद हैरान था। वो सोच रहा था कि आखिर अरशद कहाँ गुम हो गया। वो जानता था कि अरशद एक शातिर इंसान है, इसलिए वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो समझ तो गया था कि अरशद कहीं छुप गया है, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो छुपा कहाँ है। वो कुछ देर तक तो इस दरख्त के पीछे से गर्दन निकालकर अरशद को देख लेने की कोशिश करता रहा। फिर वो आहिस्तगी से जमीन पर लेटा और सीने के बल रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह सीने के बल रेंगते हुए इसने काफी फासला तय कर लिया था। फिर वो एक दरख्त के पास आकर रुक गया। उसने सोच लिया था कि वो उस दरख्त पर चढ़कर खुद को घने पत्तों में छुपा लेगा। फिर जब अरशद उसे ढूंढ ढांड कर थक जाएगा तो वो इस दरख्त पर से उतरकर गांव में पहुंचकर वहां अरशद की मकारी का राज खोल देगा। अरशद बड़ी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ा और खूब ऊंचाई पर पहुंचकर घने पत्तों में छुपकर बैठ गया। उसे क्या पता था कि अरशद झाड़ियों में छुपा उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है। सईद को दरख्त पर चढ़ता देखकर अरशद के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ देर बाद वो झाड़ियों से निकला और तेज तेज कदमों से उस दरख्त के पास आया जिस पर सईद चढ़ा हुआ बैठा था। अरशद ने चिल्लाकर सईद से कहा, मैंने तुझे देख लिया है, सीधी तरह नीचे आ जा। सईद समझ गया था कि अब खेल खत्म हो गया है। वो दरख्त से कुछ नीचे खिसक आया और एक मोटी सी शाख पर बैठते हुए बड़े नफरत भरे लहजे में बोला, इन जेवरात को संभालो, इन्होंने तुम्हें अंधा कर दिया है। ये कहकर इसने जेवरात की पोटली अरशद की तरफ फेंक दी। वो जाके झाड़ियों में गिर गई। अरशद ने कहा, अंदाज तो तुम्हारा ऐसा है जैसे तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, मगर अभी बात खत्म नहीं हुई। मैं जानता हूँ अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम गांव भर में मुझे बदनाम कर दोगे। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक वाहिद फर्द हो जो इस राज के बारे में जानते हो कि मैंने नंबरदार की जेवरात की पोटली बंदर से हासिल कर ली है। तुम्हारी मौत इस बात की जमानत होगी कि ये राज हमेशा राज ही रहे। ये कहकर अरशद ने राइफल का रुख दरख्त पर बैठे हुए सईद की तरफ कर दिया। सईद का चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो टिकटिकी बांधे अरशद की तरफ देख रहा था। अरशद ने सईद के सर का निशाना लिया और उसकी उंगली राइफल के घोड़े पर लरसने लगी। कोई लम्हा ही बाकी था कि अरशद की राइफल से निकली हुई गोली सईद की जिंदगी का खात्मा कर देती कि झाड़ियों में अचानक ही जैसे भौचाल आ गया। फिर एक भयानक चीख ने अरशद के औसान खता कर दिए। इसने घबराकर दाएं तरफ देखा। एक देव की मानत बिन मानस उसके सर पर पहुंच गया था। सईद की खुशी से एक चीख निकल गई। ये इसका दोस्त बिन मानस था। बिन मानस ने अपने लंबे और ताकतवर हाथों की एक ही ज़रब से अरशद को पीछे की जानिब गिर जाने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ से राइफल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अरशद के मुंह से डरी डरी चीखें निकलने लगी। वो जमीन पर चित पड़ा, रहम तलब नजरों से बिन मानस को देख रहा था। बिन मानस के मुंह से खौफनाक गुर्राटें निकल रही थीं। इसने अपने भारी भरकम पांव अरशद के सीने पर रखा और उस पर सवार हो गया। अरशद के मुंह से खून का एक फवारा निकला और वो तड़पने लगा। फिर बिन मानस उस वक्त तक उसके सर पर से नहीं उतरा जब तक इसका जिस्म बिल्कुल साकत नहीं हो गया। सईद एक छलांग मारकर दरख्त से कूदकर नीचे उतरा और बिन मानस से लिपट गया। बिन मानस का जिस्म कुछ भीगा भीगा था। ऐसा मालूम देता था जैसे वो पानी से निकलकर आ रहा हो। अपने दोस्त के दुश्मन को खत्म करके बिन मानस भी बहुत खुश नजर आ रहा था। इसने सईद का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक तरफ को चल दिया। थोड़ी ही दूर एक झील थी जो जंगल के काफी बड़े हिस्से में फैली हुई थी। झील के पानी में 2-3 लकड़ियों के मोटे मोटे शतीर पड़े हुए थे। बिन मानस पानी में घुसकर एक शतीर पर बैठ गया और अपने पांव को इधर उधर मारने लगा।
पाँव मारने की वजह से शतीर आगे बढ़ने लगा। बिन मानस दांत निकालकर सईद को देखने लगा, जैसे उसे भी झील के इस मजेदार खेल से लुत्फअंदोज होने की दावत दे रहा हो। अब सईद ने सोचा कि इसका बिन मानस दोस्त सुबह से इस अनोखे खेल में मसरूफ होगा, इसीलिए वो इससे मिलने के लिए नहीं आ सका। वो भी मुस्कुराते हुए पानी में दाखिल हो गया। फिर काफी देर तक बिन मानस के साथ झील की सैर करने के बाद इसने बिन मानस को इशारों में ये बताने की कोशिश की कि अब वो घर जाना चाहता है। यहाँ से सईद इन झाड़ियों में आया जहाँ पर इसने जेवरात की पोटली फेंकी थी। जेवरात की पोटली उठाकर जब वो जाने लगा तो उसकी नजर अरशद की लाश पर पड़ी, जो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। सईद को एक झुरझुरी सी आ गई। इसने सोचा अगर इसका दोस्त बिन मानस इसकी मदद को ना आता तो लालची अरशद जरूर इसका खात्मा कर देता। सईद को इस बात पर भी हैरानी थी कि बिन मानस इसकी मदद को कैसे पहुंच गया, मगर जब वो बिन मानस के साथ झील की सैर कर रहा था तो उसकी हैरानी दूर हो गई, क्योंकि जिस दरख्त पर वो बैठा था वो दरख्त वहां से साफ दिखाई दे रहा था और बिन मानस उसकी शक्ल देखकर ही वहां आया था। अरशद के तेवर देखकर इसने अंदाजा लगा लिया था कि वो इसके दोस्त सईद का दुश्मन है, लिहाजा इसने उसका खात्मा कर दिया। जंगल से बाहर आकर वो भेड़ बकरियों को साथ लेकर गांव की तरफ चल दिया। वो सबसे पहले नंबरदार के मकान पर पहुंचा और उसके सामने जेवरात की पोटली रख दी। नंबरदार बहुत हैरान था, कभी वो जेवरात की पोटली की तरफ देखता और कभी सईद की शक्ल को। सईद ने नंबरदार को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी दास्तान सुना दी। नंबरदार सईद की बहादुरी, शराफत और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, क्योंकि अगर सईद चाहता तो बड़ी खामोशी से तमाम जेवरात खुद ही रख लेता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। नंबरदार ने उसकी ईमानदारी का ये सिला दिया कि उसे अपना बेटा बना लिया, क्योंकि नंबरदार की कोई औलाद नहीं थी। पूरे गांव में सईद की ईमानदारी के चर्चे हो गए। सईद ने नंबरदार का मुंह बोला बेटा बनने के बाद भेड़ बकरियां चराना छोड़ दी और दिल लगाकर पढ़ने लगा। वैसे इसकी बिन मानस से दोस्ती अब भी कायम थी। नंबरदार जब तक जिंदा रहा उसे हमेशा इसी बात का बेहद अफसोस रहा कि उसके बचपन के दोस्त ने सिर्फ दौलत की खातिर उसे धोखा देने की कोशिश की और आखिर लालच ने उसकी जान ले ली। प्यारे दोस्तों, लालच बुरी बला है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।